Hi friends, welcome to my channel Only Bio. We are doing with the fourth lecture of Cell, the basic unit of life. Last time we had a talk about the two major types of cells based on the type of the nucleus, that is prokaryotic and eukaryotic cell. We also had a talk about the various ways of classifying the cells, the other two being based on the number of chromosomes they possess, that is haploid and a diploid cell, and the other one was based on where the cells are exactly located in the body, and depending on that we have either somatic cells or germ cells. Now today we shall be continuing with the structure of the prokaryotic cell. Now before we start with prokaryotic cell, let us first understand what exactly does this term prokaryotic mean. Prokaryotic means pro, that is primitive, and karyon means nucleus. That is, it is a cell with a underdeveloped nucleus, or we can even say that it is a cell with a primitive or old nucleus, मतलब which is not so well developed. ऐसे कहा जाता है कि जब लाइफ की शुरुआत हुई सो सबसे पहला सेल जो बना दैट वाज अ प्रोकैरियोटिक सेल, फिर उसके बाद उसमें एवोल्यूशन होने की वजह से उनमें से यूकैरियोटिक सेल्स पैदा हुए, रादर हम जिसे कहते हैं इवॉल्व हुए या उत्पत्ति. राइट नाउ टू टॉक अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल्स. नाउ व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन यू इंक्लूड इन द प्रोकैरियोटिक सेल? We can include mycoplasma, we can include PPLO, we can include bacteria, and we can include cyanobacteria, that is blue-green algae, as the examples of prokaryotic cell. The bacterial cells can be categorized into four as rod-shaped bacilli, rounded cocci, comma-shaped vibrios, and spiral-shaped spirillas. I repeat, रॉड शेप्ड मतलब उन सेल्स की लेंथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्रेथ, इसीलिए वो रॉड जैसे दिखाई देते. तो ऐसे बैक्टीरिया को हम कहते हैं बैसिलाई, जैसे आपने सुना रहेगा लैक्टोबैसिलाई. फाइन. फिर जो बैक्टीरिया गोल गोल होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोकाई. सिंगुलर इज कोकस, प्लूरल इज कोकाई. फिर जो बैक्टीरिया स्पाइरल होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पिरिला, और जो बैक्टीरिया कॉमा शेप्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं विब्रियोस. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विब्रियो दैट वी कैन गिव इज विब्रियो कॉलरा, दैट इज द वन विच कॉजेस कॉलरा. ईदर आई कॉल इट एज विब्रियो कॉलरे और विब्रियो कॉलरा, ओके, द वन विच कॉजेस कॉलरा. नाउ the bacterial cells can also be classified into two major types depending on their staining technique. The staining technique which is used to classify the bacteria is Gram's staining. It is called so because it was being discovered by a very great scientist, Christian Gram. So according to this particular staining technique, we can classify the bacteria into two major groups as Gram positive and Gram negative. अब बहुत बार बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन होता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव है क्या. सो लेट अस अंडरस्टैंड, आई जस्ट पुट इट अप सिंपली. सोचो ये आपके हाथ में एक स्लाइड है, उसपे बैक्टीरियल सस्पेंशन है, और पहले आप उस पर एक पर्पल कलर का स्टेन यानी कि कलर ऐड करते हो. आप उसको सुखाते हो स्लाइड को, फिर उस पे ग्राम्स आयोडीन डालते हो सो एज टू फिक्स द कलर की वो कलर रहे. फिर थोड़ी देर के बाद आप उस पर अल्कोहल ट्रीटमेंट देते हो सो दैट जो सबसे ज्यादा जो कलर यहाँ वहां अगर सेडिमेंट हुआ है तो वॉश आउट हो जाए, और फिर उसके बाद आप उस पर एक पिंक कलर का स्टेन ऐड करते हो. फिर उसको सुखाया जाता है एंड देन यू ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप. नाउ व्हेन वी ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप हमें ये पता चलता है कि कोई कोई बैक्टीरिया अभी भी पहला वाला यानी कि पर्पल स्टेन पकड़ के बैठे हुए हैं, तो कोई कोई बैक्टीरिया उस पर्पल स्टेन को छोड़कर पिंक वाले स्टेन को पकड़ के बैठे हैं. In other words, under the slide, you shall see two different types of bacteria, that is colored bacteria. One is purple and the other one is pink. The one which has retained the first color, that is the purple color, we call them as Gram positive. Positive because उन्होंने वो कलर को रिटेन किया, पकड़ के रखा है, फेंका नहीं है. And the second category, that is the pink ones, we call them as Gram negative
क्योंकि उन्होंने वो पहला वाला स्टेन छोड़ दिया और सेकेंड वाला स्टेन पकड़ लिया। ना ऑफ कोर्स बैक्टीरियोलॉजिकली स्पीकिंग ये जो बैक्टीरिया है ये अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं स्टेनिंग टेक्निक को, इसीलिए उन्हें हम उन दो ग्रुप्स में डालते हैं। पर इनमें अलग अलग स्टेनिंग की तरफ रिएक्ट करने का रीजन ये है अ डिफरेंस इन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ देयर सेल वॉल। बट बेसिक स्ट्रक्चर हर एक बैक्टीरिया का, हर एक प्रोकैरियोटिक सेल का सेम होता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द बेसिक स्ट्रक्चर of the prokaryotic cell. So friends, here I've already drawn the bacterial cell. From this you can easily understand that it is a bacillus because uska length zyada hai as compared to its breadth, right? So I can say it's a bacillus because it's a singular structure. Now a single bacterial cell, okay, we start describing it from the outer side to its inner side. Now outermost we can say that it is covered by means of a cell envelope. अब सेल एनवलप कहा है मैंने, जिसमें 3 कंपोनेंट्स है। सबसे बाहर जो है यहाँ पर ब्लू कलर अगर आप देख सकते हो तो दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स। उसके नीचे आता है सेल वॉल और उसके नीचे आता है सेल मेम्ब्रेन। सो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन collectively is called as the cell envelope. Okay, now let us start with the first one, that is glycocalyx. Now glycocalyx is the outermost layer and it can be present in either of the two forms, that is either as a slimy mucilaginous layer or as a tough capsule. अब the term tells you slime. Slime बोला तो मन में क्या आता है? Something which is very sticky and slippery, right? So slime layer slippery layer होता है, okay? या तो slime layer मौजूद होता है या तो capsule। दोनों भी एक साथ कभी भी बैक्टीरिया में नहीं मिलते। So जिनमें slime layer होगा उनमें capsule नहीं होगा और जिनमें capsule होता है उनमें slime layer नहीं होता। अब जो बैक्टीरिया उनके आजू बाजू में अगर कैप्सूल है तो उस कैप्सूल की वजह से वो बैक्टीरिया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत हो जाते हैं। और ऐसे जनरली देखा जाता है कि जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक मतलब जिनसे डिसीज होता है, जिनसे कोई रोग हो सकता है, ऐसे जो बैक्टीरिया है वो जनरली कैप्सूलेटेड होते हैं। और हमें यकीन भी नहीं होगा कि ये कैप्सूल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये अपने सिस्टम में जब भी बैक्टीरिया चला भी जाए तभी गैस्ट्रिक जूस जो कि इतना ज्यादा एसिडिक होने के बावजूद भी वो गैस्ट्रिक जूस कई बार इस कैप्सूल को डिसॉल्व करने में नाकाम होता है। इसीलिए these bacteria can cause a disease. So from this we can easily understand कि what would be the function of the glycocalyx, that is either slime layer or capsule. So the function of glycocalyx is the protection of the bacterium mainly. It also helps in communication. It is chemically made up of polysaccharides and sometimes even proteins are found in the glycocalyx. Now coming to the next one, glycocalyx के ठीक नीचे we can see it has a cell wall, right? It has a cell wall. Now this cell wall it differs in chemical composition in case of gram positive and gram negative bacteria. थोड़ी देर मैंने पहले कहा कि बैक्टीरिया इट रेस्पॉन्ड्स डिफरेंटली टू द ग्राम स्टेट एंड द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द केमिकल डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जनरली हैव peptidoglycan in them and gram negative bacteria have peptidoglycan as well as murin in them as a chemical component of the cell wall. अब जो कि नॉर्मली सेल वॉल का फंक्शन होता है, पहला होता है गिविंग अ बैक्टीरिया डेफिनेट शेप, सेकेंड फंक्शन होगा प्रोटेक्शन, थर्ड फंक्शन होगा इट हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस डन बाय द सेल वॉल। Now just below the cell wall we have a cell membrane that is denoted here in a pink color. Now either we call it as cell membrane or plasma membrane. Okay, chemically it's the same, phospholipids. Now if you observe you find that cell membrane से अंदर निकलते हुए कोई extensions है।
इन अदर वर्ड्स हमें ये दिखाई देता है कि कहीं पर सेल मेम्ब्रेन थोड़ा सा अंदर की तरफ जाकर फोल्ड हो जाता है. Okay, so that's the reason we call it as infolding. या other word that can be used here is invagination. अगर ये फोल्ड बाहर की तरफ हुए होते तो we would have called it as evagination. But यहाँ पर ये फोल्ड्स अंदर की तरफ है, इसीलिए we call them as invaginations. अब these invaginations are called as mesosomes. बहुत सालों तक मीसोसोम का ठीक तरह से फंक्शन पता नहीं था, but now it is known that these mesosomes first they help in the formation of the cell wall. Second, they provide support to the nucleoid. We'll talk about what is nucleoid. Third, they also help in replication of the DNA. Fourth, they also provide the surface area that is meant for secretion as well as respiration. अब यहाँ पर एक बात अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का एक जो बेसिक डिफरेंस होता है, दैट इज इन प्रोकैरियोटिक सेल्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट. इसका मतलब अगर आप इस डायग्राम को देखते हो तो यहाँ कहीं पर भी माइटोकॉन्ड्रियन नजर नहीं आएगा. अब माइटोकॉन्ड्रियन आपको और मुझे मालूम है कि इट्स द पावर हाउस ऑफ द सेल, जहां से एनर्जी रिलीज होती है यानी कि एटीपी. अब यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो क्या इसका ये मतलब है कि बैक्टीरिया को एनर्जी की जरूरत नहीं है? ऐसा तो नहीं होगा. सो बैक्टीरिया को जो एनर्जी की जरूरत है वो एनर्जी यानी कि एटीपी रिलीज करने का काम मीसोसोम करता है. द रीजन बिहाइंड इट इज मीसोसोम्स में ढेर सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद है, जो अपने केस में यानी कि यूकैरियोटिक सेल में यही एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं. So in other words, this helps in the release of energy, that is ATP. Now coming to the next, on the surface of the bacteria we find three types of extensions. One, we find a very long structure here emerging out that is called as the flagellum. Now first thing, flagellum का फायदा क्या होगा? Flagella is plural, flagellum is singular. Flagellum will help in the motility of the bacteria. अब जरूरी नहीं है कि हर एक बैक्टीरिया को एक ही फ्लैजेलम हो या फ्लैजेलम हो ही, राइट? सो अगर एक ही बैक्टीरिया एक ही फ्लैजेलम हो तो वी कॉल इट एज यूनिफ्लैजेलेटेड. अगर बहुत सारे फ्लैजेले हो तो वी कैन कॉल इट एज मल्टीफ्लैजेलेटेड. बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम. इफ यू कैन ऑब्जर्व, फ्लैजेलम निकलता कहाँ से? तो ये एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया, यहाँ से वो फ्लैजेलम निकलता है. This structure from which the flagellum arises is called as the basal body. And this part, the small part, I would just try to color it out here. This small part which connects the basal body with the rest portion is called as the hook. And the projecting part is called as the filament. So this is the basal body, this is the filament, and this portion I can call it as the hook. So in other words, flagellum is made up of three parts: the basal body, the hook and the filament. And mind you, this flagellum या bacterial flagellae differ in their structure with respect to the eukaryotic flagella. मतलब यूकैरियोटिक सेल के जो फ्लैजेले होते हैं, फ्लैजेला होता है, और बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला होता है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. Now, other extensions that can be seen are of two types. One is pili and the other one is fimbriae. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप देखते हो तो दोनों भी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिखते हैं, बट आइडियली फिम्ब्रिए आर स्मॉल ब्रिसल लाइक इन वेरी स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो अपने टूथब्रश पे ब्रिसल्स कैसे होते हैं ठीक उसी तरह से ब्रिसल जैसे नजर आते हैं. अब फिम्ब्रिए का फंक्शन क्या है? तो फिम्ब्रिए हेल्प इन द अडहीशन ऑफ सेल्स. नाउ व्हेन आई से अडहीशन, इसका मतलब होता है चिपकना, यानी बैक्टीरियल सेल दूसरे बैक्टीरियल सेल को कनेक्ट हो सकता है, चिपक सकता है, या यही बैक्टीरियल सेल होस्ट के बॉडी के टिश्यू को चिपक सकता है वाया फिम्ब्रिए. सो फिम्ब्रिए हेल्प इन अटैचमेंट. देन वी कम टू पिलाई. नाउ पिलाई आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स. Pili don't help in motility, nor do they help in adhesion.
तो पिलाई आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच कैन कनेक्ट विद द एडजेसेंट पिलाई टू फॉर्म अ कैनाल, and by means of this they can form a channel, a bridge kind of a structure through which the bacterial cells can exchange their genetic matter, yani nucleoid ka matter. Okay, so this is as good as saying reproduction. So in other words, villi enable the bacteria to undergo sexual reproduction by means of passage of the genetic matter. So this is all about villi, fimbriae and flagella. Now we get inside the cell. When we get inside the cell, the ground substance of any cell is called as cytoplasm. So ये पूरा का पूरा जो एरिया है भरा हुआ है सेल के अंदर, इसे हम कहेंगे cytoplasm. And the term cytoplasm is common for both prokaryotic and eukaryotic. अब जो सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है दैट इज दिस, एक अमीबा जैसा स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पर नजर आता है, जो हाईली फोल्डेड है, जिसे मैंने लेबल किया है न्यूक्लियोइड. प्लीज रिमेम्बर, बहुत टेक्स्ट बुक्स में आप देखोगे वहां न्यूक्लियस लिखा होता है, बट टेक्निकली इट इज रॉन्ग. इट कांट बी कॉल्ड एज ए न्यूक्लियस बिकॉज इसके बाहर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है. Okay, so that is the first reason why ideally we should be calling it as nucleoid, irrespective of what the textbooks say. Because in few of the textbooks even I have seen यहाँ पर बिंदास न्यूक्लियस लिखा होता है, जो कि आइडियली सही नहीं है. इसे न्यूक्लियोइड कहना परफेक्ट होगा, उचित होगा, क्योंकि इसके बाहर न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट. अब ये चीज क्या है? तो दिस इज अ सिंगल क्रोमोसोम. अगर आपको याद हो, इससे पहले वाले वीडियो में, लेक्चर में मैंने क्रोमोसोम के बारे में आपको जानकारी दी थी. इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, पर प्रोकैरियोटिक सेल में ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ एक क्रोमोसोम है. पर इनमें जीन्स कितने भी हो सकते हैं, मतलब दैट इज नॉट अ क्वेश्चन कि हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट ऑन इट. दैट मे डिफर फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर. नाउ this gene is made up of double-stranded circular DNA. I repeat, double-stranded. जब मैं कह रही हूँ strand यानी कि chain, double यानी कि दो chains. अब आप कहोगे ये तो अमीबा दिखता है, एक ही चेन दिखता है. हाँ, the reason behind it is because it is highly folded. इतना सा सेल है, इतनी सी जगह है, सो इतना सारा जेनेटिक मटेरियल अकोमोडेट करने के लिए वो काफी फोल्ड हो जाता है. पर अगर इसको मैं आइसोलेट करूं, सेपरेट करूं, तो हाउ विल इट अपीयर? तो इट विल अपीयर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. ना, इसके साथ साथ बैक्टीरिया के पास और भी कोई डीएनए मौजूद हो सकता है. मैंने कहा हो सकता है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर एक बैक्टीरिया में वो मौजूद होना ही चाहिए. एंड दैट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट इट्स कॉल्ड एज अ प्लाज्मिड. A very important term even in terms of the higher biotechnological studies. Now plasmid क्या दिखाई दे रहा है? एक rounded structure. This plasmid is once again it is double stranded circular DNA which is capable of undergoing self replication and is autonomous in nature. What do I mean by this? सबसे पहला मैंने कहा कि प्लाज्मिड्स हर एक बैक्टीरिया में जरूरी नहीं है कि होते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. There are cases known जहां पर एक ही बैक्टीरिया में करीबन 100 प्लाज्मिड्स भी देखे गए, और ऐसे भी बैक्टीरिया जिसमें एक भी प्लाज्मिड नजर नहीं आता. However, यूकैरियोटिक सेल में आज तक प्लाज्मिड्स का प्रेजेंस नोटेड नहीं है. Now, they are double-stranded. मतलब once again that DNA is made up of two chains. Circular DNA है, गोल है, self replication के काबिलियत रखता है, मतलब it can produce its own copies. In other words, इस DNA को, इस प्लाज्मिड को अपनी खुद की कॉपी बनवाने के लिए यहाँ पर यानी कि न्यूक्लियोइड पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है. And this is the reason why I said even they are autonomous. They are autonomous self-replicating double-stranded circular DNA molecules which may or may not be present. अब ये क्रोमोसोम जैसे ही है, so at times you can even call these structures as mini chromosomes.
I repeat, plasmids can also be called as mini chromosomes. The reason behind it is because they carry genes, but they do not carry many genes, as many genes as that of the DNA that is the nucleoid is going to carry. That is the reason why we call them as mini chromosomes. Now, depending on the functions they perform, plasmids can be classified into two categories as F plasmid and the R plasmid. Now, what does this F and R stand for? F plasmid stands for fertility plasmid. F for fertility. That means अगर ये plasmid मौजूद होगा तो it has got the genes which enables the bacterium to undergo sexual reproduction. That is the reason why it is called as fertility plasmid. And the other one is the R plasmid. R stands for resistance. Resistance to certain antibiotics. Now बच्चों, आपने सुना रहेगा एंटीबायोटिक. बहुत बार हम सुनते हैं कि डॉक्टर्स ट्रीट अस विद द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स. व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक यानी लाइफ. नॉट अगेंस्ट आवर लाइफ, against the life of another bacteria which might be proving as a threat to this bacteria. Imagine करिएगा ये एक बैक्टीरिया A है और ये एक बैक्टीरिया B है, तो उनका खाने का जो जरिया है वो कॉमन है. सो A भी स्ट्रगल करेगा खाने के लिए और B भी स्ट्रगल करेगा खाने के लिए. सो A कुछ ऐसा सब्सटेंस रिलीज करता है जिससे B मारा जाए. सो दैट इज एंटीबायोटिक. पर बी जरूरी नहीं है कि हमेशा मरेगा. बी कोई ऐसा सब्सटेंस पैदा करेगा, प्रोड्यूस करेगा जिससे ए ने बनाए हुए एंटीबायोटिक का कोई असर ही उस पर ना हो. एंड दैट इज व्हाट इज मेंट बाय रेजिस्टेंस. Okay, so this resistance in a bacterium might be developed because of the R plasmid. आजकल हम सुनते हैं कि कई बार डॉक्टर्स कहते हैं कि मरीज एंटीबायोटिक्स को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे. तो वाई डोंट दे रिस्पॉन्ड? बिकॉज मे बी जो पैथोजन उनके बॉडी में जा पहुंचा है वो पैथोजन में आर प्लाज्मिड होने की वजह से दे आर नॉट गेटिंग किल्ड बाय द एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर्स. ओके, so the plasmids are of two types, F plasmid and the R plasmid, depending on the functions. And I repeat, जरूरी नहीं है कि हर एक बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होगा ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. Now, coming to the next, in the cytoplasm, we also find inclusion bodies. Now, the term tells you inclusion, मतलब something that has been included in them. And these inclusion bodies are nothing but some smaller structures which store the substance.